Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So, welcome to my new video. In this video, we are going to learn 6th lesson of history, the early kingdoms in the India. So, you should take your SST textbook and open your page number 43. Okay. There are some new words and their meanings. We should understand the meanings of these words here, and these words especially used in the period of early kingdoms in our India. Okay. First, Ashwamedh means a big sacrifice. There were some performance um, performed by rulers, and there were some big sacrifices also, and these big sacrifices were called the Ashwamedha. Okay, sacrifices means bali dena, त्याग करना. Okay. Digha Nikaya means famous Buddhist book that contains the saying of the Buddha, and it is one famous Buddhist book. Okay, Digha Nikaya. Jana, what is mean by Jana? Common people. जो कॉमन लोग रहते थे उन्हें जन कहा जाता था. एंड जनपद मीन्स द लैंड ऑफ कॉमन पीपल. मीन्स जो ग्रुप रहता था कॉमन लोगों का, कॉमन पीपल का, और जहाँ पे वो रहते थे उन्हें जनपद कहा जाता था. काम कराज मीन्स लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स. मीन्स जिनके पास लैंड नहीं होती थी, जो दूसरे के लैंड में खेती में वर्क किया करते थे, these people were called the kamkaras. Okay, these landless agricultural laborers were called the kamkaras. Mahajanapadas means big and important janapadas. There were some janapad. Okay, janapadas means some group of people grouply lived on one place. That group were called the janapada. Okay, and some groups were important and big. These groups, these janapadas were called the mahajanapadas. Okay, then painted grave ware means unique type of pottery found during the period of mahajanapadas. And there are pottery found. Okay, and from which period this pottery? फ्रॉम द पीरियड ऑफ महाजनपदास. महाजनपदास का जो पीरियड था वहाँ से ये पॉटरी मिली है. ओके, दिस पॉटरी इज कॉल्ड द पेंटेड ग्रे वेयर. संघ मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ पीपल. ये लोगों का एक ग्रुप रहता था, एसोसिएशन रहता था, ऑर्गेनाइजेशन रहता था. ओके, यहाँ पे लोगों को एक दूसरे की हेल्प मिलती थी. दैट इज कॉल्ड द संघ. वज्जी मीन्स अ रिपब्लिकन महाजनपदा. वज्जी मीन्स रिपब्लिकन महाजनपदा. वर्ना मीन्स द 4 ग्रुप्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी. Varna means in earlier period, especially during the early kingdoms period. Okay, there were our society divided into 4 groups. There were casteism, caste ladder. Okay, and these people were divided into 4 different groups, and these 4 different groups were called the Varna. Okay, now come to the lesson. The development of kingdoms started in India around 2500 years ago. एंड जो भी किंगडम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, किंगडम्स डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ व्हेन इट स्टार्टेड इन आवर इंडिया अराउंड 2500 years ago. ओके, मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड इन द गंगा वैली. और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे डेवलप हुई ये किंगडम्स? इन गंगा वैली. ओके, these kingdoms had well defined territories and governments. और ये जो भी किंगडम्स वहाँ पे थे ये बहुत ही वेल डिफाइंड टेरिटरीज थी. टेरिटरीज मीन्स प्रांत, एरिया, एंड गवर्नमेंट. उन ये जो किंगडम्स थे, डेवलप्ड किंगडम्स, इन यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था ये बहुत ही वेल डेवलप्ड था. ओके, big and powerful empires grew out of these kingdoms.
एंड ये जो गंगा वैली में किंगडम्स थे, लेटर दीज किंगडम डेवलप्ड इन बिग एंड पावरफुल एम्पायर्स. ओके, यू नो एम्पायर्स, एम्पायर्स मीन्स साम्राज्य, किंगडम मीन्स राज्य एंड एम्पायर्स मीन्स साम्राज्य, बिग किंगडम. ओके, then next topic is here, rulers in the past. We have to study about the rulers in the past. Okay, for the last 60 years we have been choosing a rulers by the system of voting, and for the last 60-70 years. okay, हम पिछले 60-70 से हमारे जो भी रूलर्स है ये कैसे चूज़ कर रहे हैं, बाय वोटिंग. ओके, देयर इज़ सिस्टम ऑफ वोटिंग. आपके पेरेंट्स वोटिंग के लिए जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके आते हैं. ओके, आफ्टर दिस वोटिंग देयर इज सम प्रोसीजर एंड इलेक्ट द रूलर अमॉन्ग दीज रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, बट इन द पास्ट इट वॉज नॉट लाइक दैट. और लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था. ओके, इन द अर्ली डेज किंग्स वर प्रोबेबली चूजन बाय जना द पीपल, एंड इन अर्लियर पीरियड वहाँ पे कैसे होता होगा, प्रोबेबली मीन्स पॉसिबिलिटी. ओके, ऐसे होता होगा. तो लोग अपना जो भी रूलर था, हेड पर्सन था, उसे इलेक्ट करते होंगे, चूज़ करते होंगे, सॉरी इलेक्ट नहीं, चूज़ करते होंगे. बट द एंटायर स्टोरी चेंज अराउंड 3000 ईयर्स एगो. लेकिन 3000 ईयर्स पहले यहाँ पे ये पूरा चेंज होता गया. During this time, some men became recognized as a rajas by performing very big sacrifices. And ये जो पीरियड था यहाँ पे कुछ लोग मीन्स कुछ राजाज परफॉर्म करते थे राजा बनने के लिए. ओके, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस वहाँ पे होते थे. सेक्रीफाइसेस मीन्स बहुत बड़े बड़े होम हवन, बलिदान देना. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्रीफाइसेस. तो ऐसे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके वहाँ पे रूलर्स बनते थे. गॉट इट. नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस. यू नो सोर्सेस, व्हाट इज मीन बाय सोर्सेस? सोर्सेस मीन्स some objects or some historical buildings, means monuments, and some written records. Through these objects, through these monuments, through these written records, we can get the information about the past. Okay, and these objects, these monuments, these records, written records are called the sources. Okay, got it. And which are the sources of these early kingdoms? Vedic text. Okay, Vedic text are the main source of the information of this period. कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें ये पीरियड के बारे में, अर्ली किंगडम्स के बारे में? वैदिक टेक्स्ट में. ओके, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज जातका टेल्स ऑल्सो रेफर्स टू द जनपदास एंड महाजनपदास विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस एज. एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच इज़ दिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट जातकास टेल्स. ओके, यहाँ पे भी हमें जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है. Now, read stories from the Jataka tales. Share your finding with your classmate. You should read the stories from Jataka's tales. Okay, and share your idea, share your finding with your classmate, with your friend. Next topic is here, use of iron. This period saw an increasing use of iron implements and tools. एंड ये जो पीरियड था अर्ली किंगडम्स का, यहाँ पे जो आयरन का यूज़ हो रहा था वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था. ओके, फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग द इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स. These implements and tools were stronger and made work easy and fast. और ये जो implements और tools यहाँ पे थे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो भी वर्क होता था वो फास्ट हो रहा था
एंड ईजी हो रहा था. आयरन एक्सेस वर यूज्ड टू क्लियर फॉरेस्ट एंड लार्जर सेटलमेंट्स डेवलप्ड. और ये यहाँ पे जो आयरन एक्सेस यूज़ की जाती थी ये फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए यूज़ होती थी एंड लार्जर सेटलमेंट डेवलप्ड वहाँ पे होती थी. ओके, जो फॉरेस्ट क्लियर किए जाते थे आयरन एक्सेस से वहाँ पे सेटलमेंट डेवलप्ड होती थी. ओके, स्मॉल टेरिटरीज वर नाउ लार्जर किंगडम्स. और जो छोटी छोटी टेरिटरीज वहाँ पे थी, टेरिटरीज मीन्स प्रांत, एरिया, ये अब लार्जर किंगडम्स बन चुकी थी. ओके, स्मॉल जनाज डेवलप्ड इनटू लार्जर जनपदास. और जो भी स्मॉल जनाज थे, यू नो जनाज, जनाज मीन्स कॉमन पीपल. ओके, ये कॉमन पीपल के ग्रुप ये अब डेवलप होके लार्जर जनपदास बन चुके थे. ओके, Janapadas. We have to study about the next topic, Janapadas. We had already read that the Aryans settled down in Janas or tribes. और हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो आर्यंस थे ये जनाज मीन्स ट्राइब्स में सेटल्ड हो चुके थे. ट्राइब्स मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम रिलीजन, सेम कास्ट. ओके, gradually these janas grew big and powerful and came to be known as Janapadas. And slowly, gradually means slowly, धीरे धीरे ये जो जनाज थे ये बिग एंड पावरफुल जनपदाज में ग्रीव होते गए. ओके, डेवलप्ड होते गए. The word Janapada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. And what is the meaning of the Janapadas? जो लैंड थी जहाँ पे लोग रहते थे उनके फुट पैर उन्होंने सेट किए थे. ओके, दैट इज कॉल्ड द जनपदा. द रूलर्स हु कंट्रोल बिग एरियाज एंड परफॉर्म्ड अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज द राजाज ऑफ जनपदास. एंड जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, वो बहुत बड़ी बड़ी एरिया को कंट्रोल करते थे एंड अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड करते थे और वो राजा समझे जाते थे पूरे जनपदा के. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपदा सच एज द अतरंजी खेरा नियर इताह, हस्तिनापुरा इन मीरत बोथ इन उत्तर प्रदेश एंड पुराना किला इन दिल्ली. एंड आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सेटलमेंट्स मिली है जैसे देर आर सम नेम्स ऑफ दीज सेटलमेंट्स. अतरंजी खेरा, हस्तिनापुर जो मीरत के नज़दीक है एंड पुराना किला दिल्ली का. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट पीपल केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एंड लिव्ड इन हर्ड्स. और आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी कुछ डिस्कवर्ड किया है, कुछ उन्हें मिला है कि ये जो लोग थे ये कैटल्स के साथ रहते थे, अपने साथ वो कैटल्स रखते थे और बाकी भी एनिमल्स वो रखते थे एंड वो हट में रहते थे. ओके, दे ऑल्सो ग्रीव several crops like pulses, barley, wheat, rice, sesame, mustard and sugar cane. और वो बहुत सारे क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो करते थे. ओके, दीज आर द क्रॉप्स जो जनपदास के लोग ग्रो करते थे. ओके, दे वर गुड एट मेकिंग अदन पॉट्स ऑफ ग्रे एंड रेड कलर्स. एंड ये कौन से पॉट्स यूज़ किया करते थे? अदन पॉट्स. ओके, एंड ग्रे एंड रेड कलर के रहते थे ये अदन पॉट्स. वन यूनिक टाइप्स ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट्स इज़ नोन एज अ पेंटेड ग्रे वेयर. एंड दूसरी और भी पॉटरी यहाँ पे मिले हैं, पॉट्स यहाँ पे मिले हैं जो भी साइट्स थी उन्हें क्या कहा जाता है? पेंटेड ग्रे वेयर. ओके, what is the meaning of the painted grey ware? Unique type of pottery found during the period of Mahajanapadas. ये अलग तरीके के pots थे. Okay, these grey pots had painted designs like geometric patterns and the simple lines. Okay, now turn your page number 44. There are MCQs.
You have to solve these MCQs here. First, fill in the blanks. Text are the main source of information of this period. There are three options: Janaz, Ashwamedha and Vedic. कहाँ से मिल रही है हमें इंफॉर्मेशन? ये जो पीरियड है अर्ली किंगडम का, इसकी वैदिक टेक्स्ट से. ओके, दैट्स वाई व्हाट इज द आंसर हियर? सी ऑप्शन इज आंसर हियर, Vedic. Okay. Then second, one unique type of pottery found at these sites is known as. There are again three options: PWG, PGW, GPW. B option is answer here, PGW. This answer is wrong. Okay, जो यहाँ पे आंसर टिक किया हुआ है ये wrong है. What is answer here? PGW. What is the long form of this PGW? Painted graveware. Okay. Then next topic is here Mahajanapadas. Historians suggest that around 2500 years ago, some Janapadas became more important and powerful than the others and were called Mahajanapadas. And historians ये बताते हैं कि 2500 years ago देर वर सम जनपदास, एंड ये जो जनपदास थे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके थे एंड पावरफुल बन चुके थे बाकी जनपदास से. ओके, एंड दैट्स वाई दीज जनपदास वर कॉल्ड द महाजनपदास. गॉट इट? देर वर अराउंड 16 महाजनपदास इन द गंगा वैली इन 6th century BCE. एंड गंगा वैली में कितने महाजनपदास थे? 16. And when it in 6th century BCE. Okay, before common era. BCE means they were named after the ruling or the most important tribes in the area. Two types of political system prevailed in the Mahajanapadas. There were two types of political systems. Okay, we have to study about this political system. Republic and monarchy. In republic, this kind of Mahajanapada was ruled by a group of people elected by the people of that tribe. Example Sakya. यहाँ पे क्या होता था रिपब्लिक में कि लोग अपना लीडर इलेक्ट करके देते थे. ओके, and which is the example of this republic Mahajanapada? Sakya. Okay, and then next is here monarchy. You know monarchy, ये गवर्नमेंट कैसी रहती है? रूलर वर्क करते हैं यहाँ पे. ओके, in this kind of system the son prince succeeded his father king to the throne. Example Magad. इन दिस सिस्टम, इन मोनार्की, जो भी रूलर रहेगा उसके बेटे को सिंहासन मिलता है और वो राज करता है आफ्टर फादर. ओके, व्हाट इज द आंसर? सॉरी, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? मगध. मोस्ट महाजनपदा हैड अ मोनार्किकल सिस्टम. ज़्यादा से ज़्यादा महाजनपदा जो थे यहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम थी, मीन्स क्वीन किंग थे. ओके, ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी. हर एक महाजनपदा को कैपिटल सिटी थी. मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर फोर्टिफाइड, एंड ज़्यादा से ज़्यादा महाजनपदास फोर्टिफाइड थे. फोर्टिफाइड मीन्स मेक द स्ट्रॉन्ग. जो भी महाजनपदा, जो भी जनपदास वहाँ पे था उसके सराउंडिंग में वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती थी. ओके, स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे हम बोलेंगे फोर्टिफाइड. फोर्ट्स वर बिल्ड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अटैक ऑफ अदर किंग्स. और फोर्ट्स भी वहाँ पे बिल्ड किए जाते थे. फोर्ट्स मीन्स किले. ओके, फॉर वॉट? टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अटैक ऑफ अदर किंग्स. बाकी जो किंग्स वहाँ पे अटैक करते थे उनसे प्रोटेक्ट कर, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्ट्स बिल्ड किए जाते थे. It is also possible that some rulers displayed their power by building huge fortification around their cities. And वहाँ पे जो रूलर्स थे उन्हें अपना पावर भी शो करना था, उसकी वजह से भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन वहाँ पे किया करते थे. स्ट्रॉन्ग वॉल्स वहाँ पे बिल्ड की जाती थी पूरे सिटी के अराउंड. ओके,
it was easy for the kings to control people living inside the fortified area. और जो भी fortified एरिया रहता था वहाँ पे राजा को कंट्रोल करना भी इजी जाता था. जो लोग fortified एरिया में रहते थे उन्हें कंट्रोल करना भी राजा को इजी जाता था. दिस फोर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लेबर एंड रिसोर्सेज. और ये जो फोर्टिफिकेशन यहाँ पे होता था, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था, पैसा लगता था, लेबर लगता था एंड रिसोर्सेज भी लगते थे. ओके, एट दैट टाइम सर्टन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस and during this period there were some important development. Rajas began to maintain strong standing armies. और ये जो पीरियड था अर्ली किंगडम का, यहाँ से स्टार्ट हो चुका था कि जो रूलर्स थे ये आर्मी मेंटेन करते थे. ओके, salaries were paid to the soldiers and all the expenses were maintained by the king all over the year. और सैलरीज वहाँ पे सोल्जर्स को पे करनी पड़ती थी और जो भी मेंटेनेंस था, जो भी खर्चा था, ये भी राजा को करना पड़ता था पूरे साल भर. ओके, पंच मार्क्ड कॉइन्स began to be used in the form of new currency and now there were new currency. ओके, यू नो करेंसी जो रुपीज़ हम यूज़ करते हैं, ओके, उसे हम बोलेंगे करेंसी. तो वहाँ पे न्यू पंच मार्क कॉइन्स स्टार्ट हो चुके थे एज अ करेंसी. ओके, नाउ देयर इज़ वंडरफुल टू नो Ashwamedha was a big sacrifice and during this period Ashwamedha was a big sacrifice, big performance. This was a ritual by a king in which a horse was let loose by him to wander freely. अब ये जो sacrifice यहाँ पे होता था अश्वमेधा, यहाँ पे क्या होता था कि जो रूलर रहता था, किंग रहता था, ये अपने हॉर्स को छोड़ देता था फ्री. द हॉर्स वॉज गार्डेड बाय द किंग्स मैन. और जो हॉर्स छोड़ा जाता था उसको कुछ लोग, राजा के लोग उसका प्रोटेक्शन करते थे. ओके, देखते थे उसे. इफ एनी किंग ट्राइड टू स्टॉप द हॉर्स इन हिज टेरिटरी, द किंग हैड टू बैटल विद द किंग हु वॉज परफॉर्मिंग द अश्वमेधा. और अगर कोई भी किंग उसके टेरिटरी से अगर वो हॉर्स जाता है और उसे वो जो दूसरा किंग है वो रोकता है, तो वो किंग को ये किंग के साथ बैटल करनी पड़ती थी, वॉर करनी पड़ती थी. ओके, इफ ही अलाउड टू लेट द हॉर्स पास, इट वॉज बिलीव्ड दैट ही हैड accepted the superiority of the king who wanted to perform the sacrifice. अगर हॉर्स को वैसे ही जाने देते हैं कोई भी रूलर, तो ये समझा जाता था कि ये किंग ने जो अश्वमेध सेक्रीफाइस करने वाला किंग है उसकी सुपेरियरिटी एक्सेप्ट कर ली है. ओके, so in this way the might of the king was recognized. These kings were invited to the sacrifices which was held at the end of the entire process. और पूरी ये प्रोसेस होने के बाद ये जो किंग यहाँ पे रूलर रहता था, ये सभी रूलर्स को, सभी किंग्स को इनवाइट करता था फॉर अश्वमेध सैक्रिफाइस. ओके, ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर द किंग. और जो भी वहाँ पे आते थे वो राजा के लिए गिफ्ट लाते थे. द राजा हु परफॉर्म्ड अश्वमेध वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दोज रिचुअल्स and tales of his glory were chanted. Common people called Vish or Vaishya would give gifts to the king. और जो कॉमन लोग थे ये भी यहाँ पे रूलर्स को गिफ्ट देते थे. शूद्र वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी रिचुअल्स. और जो भी रिचुअल्स यहाँ पे होते थे, रिचुअल्स मीन्स होम हवन, यहाँ पे शूद्र को एंट्री नहीं थी. ओके, देयर वर 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल. वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन अबाउट दिस ग्रुप्स. ओके, तो जो शूद्र ग्रुप था इन्हें ये परफॉर्मेंस में एंट्री नहीं थी.
Now, on next page, page number 45, taxes. We have to study about the taxes. Fortification and maintaining large armies required money. और ये जो fortifications यहाँ पे किया जाता था, fortification means understood everybody? Did you understand अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन? जो भी सिटी वहाँ पे रहती थी, जो एरिया रहता था जहाँ पे सेटलमेंट थी, लोग वहाँ पे रहते थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए पूरे सिटी के आजू बाजू में वॉल बनाई जाती थी, स्ट्रॉन्ग वॉल. अगर आप अमरावती सिटी में अम्बा देवी टेम्पल के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी वॉल दिखाई देगी. ओके, तो ये वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता था. और देयर वर लार्ज आर्मी ऑल्सो. ओके, वहाँ पे आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ती थी रूलर को, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी. These could be executed and maintained only with a regular flow of money. और ये जो भी मेंटेनेंस था वहाँ पे, तो ये कैसे पॉसिबल था करना कि वहाँ पे रेगुलर सोर्सेस चाहिए थे पैसों के. ओके, Hence the राजा started collecting regular taxes. और इसी की वजह से वहाँ पे रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट हो चुका था, जो लोगों से कलेक्ट किया जाता था. ओके, ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय द राजाज हु कलेक्टेड टैक्सेस ऑन हिज बिहाफ. एंड वहाँ पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए टैक्स कलेक्ट करने के लिए. ओके, द कलेक्टेड टैक्सेस वर एज फॉलोज. और जो भी कलेक्टेड टैक्सेस वहाँ पे थे वो आगे है. भाग और शेयर वॉज अ टैक्स ऑन क्रॉप्स. और ये जो शेयर टैक्स था, भाग, ये क्रॉप्स पे लगाया जाता था. इट वॉज फिक्सड एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द फार्मर्स. और फार्मर्स का जो भी टोटल प्रोडक्शन वहाँ पे होता था उसके 1/6 शेयर राजा को देना पड़ता था, फार्मर्स को. ओके, एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस वर कलेक्टेड एज अ फॉर्म ऑफ द टैक्स फ्रॉम हर्डर्स. और जो भी हर्डर्स रहते थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था. जो भी एनिमल्स प्रोडक्शन वहाँ पे होता था उसका कुछ शेयर राजा को देना पड़ता था. क्राफ्ट्समैन ऑल्सो पेड द टैक्स बाय वर्किंग फॉर अ डे इन एवरी मंथ फॉर द किंग. और जो क्राफ्ट्समैन रहते थे मीन्स कुछ चीज़ें बनाई जाती है, यूज़फुल चीज़ें. ओके, तो जो ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल बास्केट, पॉट्स, ये जो भी वहाँ पे बनाते थे उसे क्राफ्ट्समैन कहा जाता था. तो ऐसे जो पर्सन्स थे इन्हें रूलर्स के यहाँ पे पूरे महीने में एक दिन काम करना पड़ता था. ओके, द राजा कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स. और जो भी हंटर्स गैदरर्स रहते थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था. कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था? हंटर्स एंड गैदरर्स से. हंटर्स एंड गैदरर से जो भी उनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उनका कुछ शेयर राजा को देना पड़ता था, रूलर्स को देना पड़ता था. गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड वर ऑल्सो टैक्सेबल. और जो भी गुड्स वहाँ पे खरीदे बेचे जाते थे उस पर भी कुछ टैक्स लगाया गया था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर. With the increased use of iron tools, there was a great improvement in agriculture. और ये जो टूल्स यहाँ पे यूज़ किए जाने लगे थे आयरन के, उसकी वजह से जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस थी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ था. द आयरन प्लग शेयर्स डिप्लेस्ड वुडन प्लग शेयर्स. And in ancient period, in earlier period, there were people used the wooden plowshare, wooden tools. But during the period of earlier kingdom, people used the iron tools, iron plowshare. Now clay soil could be turned over better by deep प्लगिंग ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर प्लगशर्स. और ये जो आयरन के प्लगशर्स यहाँ पे यूज़ होने लगे, आयरन के टूल्स यहाँ पे यूज़ होने लगे, उसकी वजह से जो भी प्लगिंग वहाँ पे होता था फार्म में
ये बहुत ही डीपली होने की वजह से जो सॉइल थी ये इजीली टर्न होने लगी, and this brought about a drastic rise in crop production। और इसकी वजह से जो भी क्रॉप्स प्रोडक्शन था ये इंक्रीज़ होता गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। The second important change was the practice of transplanting paddy। और सेकेंड चेंज कौन सा था ये पीरियड में? प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी मीन्स राइस क्रॉप्स, ओके, राइस के जो क्रॉप्स रहते हैं उसे हम बोलेंगे पैडी। In this method, instead of scattering seeds on the ground, saplings were grown and then healthy saplings were planted in the field। एंड ये जो मेथड रहती है प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी में क्या होता है कि जो सीड्स ग्राउंड्स पे फैलाए जाते हैं, बोए जाते हैं, इसकी बजाय ये एक प्लेस पे ग्रो किए जाते हैं और जो भी हेल्दी सैपलिंग्स उसमें से रहते हैं ये दूसरे प्लेस पे लगाए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसप्लांटिंग पैडी, ओके। एंड दिस ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और उसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन होता है ये इंक्रीज होता है। और ये मेथड कहाँ पे स्टार्ट हुई? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्ली किंगडम, ओके। और यहाँ से जो भी प्रोडक्शन था ये इंक्रीज होता गया। इट वॉज टफ वर्क एंड डन बाय स्लेव मेन एंड वीमेन, दासा एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, काम कराज। एंड ये जो वर्क है ये बहुत ही टफ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और कौन से लोगों से ये वर्क करवा के लिया जाता था? स्लेव्स, मेन एंड वीमेन। स्लेव मीन्स गुलाम, दास एंड दासीज जो रहते थे, जो बैटल्स वॉर होती थी वहाँ पे लोगों को कैप्चर किया जाता था, उन्हें स्लेव्स बनाया जाता था, ओके। तो उनसे ये वर्क यहाँ पे करवाया जाता था। एंड सम पीपल्स वर देयर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, काम कराज मीन्स जिनके पास लैंड नहीं रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? काम कराज। और इनसे भी ये वर्क करवा के लिया जाता था। विद दिस मेथड वर्क इंक्रीज बट सो डिड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एंड यहाँ पे वर्क, ये जो मेथड थी यहाँ पे वर्क बढ़ता गया, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो भी यहाँ पे बढ़ता गया, ओके। नाउ देयर आर MCQs, we have to solve these MCQs here. First, the tax on crops was fixed at fill in the blanks of the total production. There are three options: 1/4, 1/6 and 2/4. What is answer here? B option is answer here, 1/6। जो भी टैक्स रहता था क्रॉप्स पे लगाया जाता था वो कैसे रहता था? 1/6 of the total production. Then second, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स वर कॉल्ड। देर आर थ्री ऑप्शंस: दासीज, काम कराज एंड दासाज। और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे उन्हें काम कराज कहा जाता था। बी ऑप्शन इज आंसर हियर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज completed here. Next topic we will study about this next topic in the next video.